at the same time I'm feeling satisfied. Apart from this physical fitness part, I don't even remember that when I was consistent. How do you feel about the goals that you have been setting for yourself and then achieving them every day? So there was a clarity from that day कि okay, I don't have to set goals on the regular basis. This is my short-term goal for these 30 days and I have to accomplish it. आप देख रहे हैं हमारी सीरीज ट्रांसफॉर्मेशन। स्वागत है आप सबका CTRT में। आज हमारे साथ है आदित्य सिंह राठौर। ही इज अ वर्किंग प्रोफेशनल हु इज एमिंग हाई। ही इज वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर मैन दैट आई हैव इंटरेक्टेड विद। हमने उनकी जर्नी की शुरुआत लगभग एक हफ्ता पहले शुरू की एंड यू आर वॉचिंग वन ऑफ द इंटरेक्शन वी हैव हैड इन हिज ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। द पर्पज ऑफ दिस वीडियो is to make you aware that people like you and me go through a curve of learning and failure before we actually achieve something. Despite having all the wisdom in the world, it is never a straight walk to the goal. इस सीरीज में आप देखेंगे कि कैसे लोग ग्रेजुअली इंप्रूव कर रहे हैं और एडवांस कर रहे हैं अपने गोल की तरफ। We will have people from diverse backgrounds जो अपने अलग अलग गोल्स को हासिल करने की जर्नी में लगे हुए हैं। आदित्य is one such individual who decided to sign up with us. This interaction is raw and unfiltered. Enjoy the episode. So, like if I talk about last 5-6 days, so I feel that whenever someone is there who take some sort of accountability from your side, that you do the work, I will check that work. So at that time I feel I'm telling you that I feel confident. Okay. And at the same time there is this awareness also that whatever I am doing, there is someone to whom I trust, that he's verifying that and checking that my daily tasks. So wherever I will go wrong, he will guide me. So from the physical fitness part, like in that segment everything is going well, but in the studies section I am not satisfied with my performance. But at the same time I am feeling satisfied, and the reason behind that is because I know that someone is there, means you are there to guide me. So this is the main reason because of which I am feeling satisfied. ठीक है। और अच्छा, tell me this, है ना? When was the last time you were consistent in your आपका work? आवाज थोड़ा धीरे आ रहा है। अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ, अभी आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ when was the last time you felt that you were consistent for 6 days continuously, है ना, in your work? कब था last time? The last time, like as I mentioned earlier, that in terms of physical fitness, I am running from past 1 month, I guess. So in running, I have consistency. ठीक है। But apart from physical fitness, I don't feel that. I don't even remember that when I was consistent. सही में? Means we can say like at the pace of 6 days, if we take the duration 15 days, so that will be more appropriate. ठीक है। So, apart from this physical fitness part, I don't even remember that when I was consistent. मतलब हम ये कह सकते हैं कि पढ़ाई में it's been a while, है ना, since you have been consistent. हाँ, पढ़ाई में बोल सकते हैं कि it's been a while. I don't remember. मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही पढ़ाई होती नहीं है, but consistency is the main thing, so I don't even remember. How do you feel about the goals that you have been setting for yourself and then achieving them every day?
So setting goals and achieving them every day. So for this aspect, I feel that when on the day when we created that Google spreadsheet, so there was a clarity from that day ki okay, I don't have to set goals on the regular basis. This is my short-term goal for these 30 days and I have to accomplish it. So I don't have to take so much pressure or think a lot कि आज क्या करना है, कैसे करना है, वो करना है. Because on the day one itself we decided कि ये अपना short term goal है and that goal also it was not like कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा goal ले लिया है, बहुत ही ज़्यादा छोटा goal ले लिया है. Everything is doable and at the same time I am also pushing myself. It feels good. If in one line I want to summarize, and reason behind that feeling is because on the day one we have decided our course of action for next 30 days. So keeping short term goals have helped you, है ना? ज़्यादा लॉन्ग टर्म गोल हो जाते हैं तो हमारे एग्जीक्यूशन के बीच में और जो हमें रिजल्ट मिलने वाला होता है या फीडबैक मिलने वाला होता है उसके बीच में बहुत लंबा गैप क्रिएट हो जाता है ना. हाँ, और इस वजह से फिर समवेयर अलोंग द पाथ वी लूज इंटरेस्ट इन इट. करेक्ट है ना. So I think it's working wonderfully. I have been looking at your sheet every day. Every evening I check it. In fact, during the day also I check it if you have updated anything. Acha, Aditya, you have mentioned this problem in your sheet repeatedly, which is about not being satisfied with the quality of your study. What is that about? Tell me a little bit about that. What makes you unhappy? So mainly I think that when I go for a run or do push-ups and all, so at that time I have that sense of feeling that I am pushing myself. Like if right now I'm running 2 kilometers, 3 kilometers, so I know that I am pushing myself in push-ups also or in some other exercises. I know that I'm pushing myself and doing enough. But on the other side, when I study, so I feel that I'm not able to achieve the things which I want to achieve in that same 24 hours with focus, dedication, willpower, and everything. Mainly focus is the main thing. But for once, please elaborate to me what you actually mean when you say that you are not able to achieve the things you wanted to achieve within this span of 24 hours. एक एग्जाम्पल के साथ मुझे समझाना कि what do you expect from yourself? कितना अचीव होना चाहिए? So right now I am studying about a framework which is ISO 27001. So it is a very big framework, but I don't have any practical exposure of that. It is related to auditing and all. But I want to make my career in this particular field. So for that thing, I am doing this framework. So I have started it. What we say from the beginning. But at the same time, because I don't have the practical exposure, so I'm not able to relate. When I am watching the classes, so I'm not able to relate what the teacher is saying. It's not like that I'm not able to understand. I'm understanding everything, but at the same time, I am aware in my mind that when I will go for the interviews, so they will not check my theoretical knowledge. They want to see that how much practical exposure I have or how much depth is there in my understanding. So when I am watching those videos, and I guess the length of video is around 3 hours. So watching one video daily, 3 hours, then at the same time making notes also. So it consumes around 4-5 hours, I guess, because of the notes and all. So I feel that I'm watching it properly, making notes, but I'm not grasping things properly. So when I
thought about it little more. So I realized that because this is a new segment and I'm watching video, then I'm also making notes. So this may be the reason because of which I'm not grasping as per my potential. So and I was thinking that after the completion of these 13 videos, I will start again when I will be having all those notes. So at that time, I feel that this situation will change. So it's not a problem, I guess. Is this the only reason why you feel discontented? या इसके अलावा भी कोई और रीजन है? Apart from this, we can say that my focus is not that much. Like what I am feeling right now, that I am easily getting distracted. So this is also the main reason. Well, डिस्ट्रैक्शन का तो हम वाकई कुछ कर सकते हैं. इसके अलावा आदित्य, आई वांट टू एड्रेस योर फर्स्ट पॉइंट है ना, जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर वाली बात है. मुझे ये जानना है कि ऐसी कौन सी फील्ड्स हैं जहाँ पे बिना थियोरेटिकल नॉलेज के या बिना कोर्स से गुजरे आपको पहले ही फील्ड में भेज देते हैं और पहले ही आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने का मौका देते हैं. आई थिंक बहुत कम ऐसे एरियाज हैं ना जहाँ पे आपको ऐसा कुछ अलाउ करते हैं. करेक्ट है ना. तो मुझे तो नहीं पता. मतलब ये कि आपने कोर्स कंप्लीट किया नहीं है अभी आईएसओ का, आपका सर्टिफिकेशन भी नहीं है अभी आईएसओ का, है ना. यू आर नॉट अ सर्टिफाइड ऑडिटर, है ना. करेक्ट. सो कैन दे सेंड यू इन द फील्ड टू ऑडिट समथिंग व्हेन यू आर नॉट अ सर्टिफाइड ऑडिटर? नो. दैट इज माई पॉइंट, है ना. तो बात यह है कि जब हम अभी सर्टिफाइड हुए ही नहीं तो हमें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा भी कैसे, है ना. करेक्ट. तो इसीलिए हमारा जो ओनली सोर्स ऑफ इनपुट है नॉलेज के टर्म्स में, वो ये कोर्स ही है. करेक्ट. इसके अलावा जो हम एक सेकंड सोर्स क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, वो ये है कि आइदर यू कैन टॉक टू योर सीनियर्स जो ऑडिट में हैं ऑलरेडी, जिन्होंने ये सर्टिफिकेशन किया हुआ है, एंड यू कैन टॉक टू देम अबाउट व्हाट यू आर स्टडीइंग इन द कोर्स. ओके. ये एक तरीका है ना. दूसरा तरीका क्या है कि यू कैन गो ऑन यूट्यूब और देखो कि एक्चुअल में ऐसे कोई ऑडिट के लाइव वीडियोस या ऐसा कुछ है क्या, है ना. अगर कुछ सैम्पल वीडियोस मिल सकें टू सप्लीमेंट योर नॉलेज कि ठीक है जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो एक्चुअल में इन एग्जीक्यूशन कैसा दिखता है ना, व्हेन यू आर इन द फील्ड. ओके. है ना. सो अगर ये किया जा सकता है तो दैट विल बी योर सेकेंड सोर्स ऑफ इनपुट, है ना, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज. और आई थिंक तभी थोड़ा और बेहतर तरीके से यू विल बी एबल टू रिलेट विद व्हाट यू आर स्टडीइंग, है ना. ओके. ठीक है. तो ये बात होगी प्रैक्टिकल एक्सपोजर की. तो वन ऑफ द थिंग्स दैट वी ऑलवेज नीड टू टेक केयर ऑफ इज कि हम अपने आप से ना सही उम्मीदें करें. हम अपने आप से ना बहुत ज़्यादा उम्मीद कर बैठते हैं, ठीक है, और फिर उसका प्रेशर ही है जो हमें ना आधी बार तो मार डालता है बेसिकली, है ना. करेक्ट. है ना. नाउ अब इवन यू अंडरस्टैंड दिस कि बिना सर्टिफिकेशन के तो कोई भेजेगा ही नहीं आपको ऑडिट के लिए, तो पहले तो कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना. सो यू विल हैव टू डू योर बेस्ट इन टर्म्स ऑफ रिलेटिंग विद द नॉलेज. जहाँ तक कोर्स को रिटेन करने की बात है ना, यू कैन यूज दिस स्पेस्ड रिवीजन टेक्निक. इससे एक और जो फायदा होगा वो ये होगा कि जो भी नॉलेज जिससे हम अक्सर रिलेट नहीं कर पाते हैं ना, उसका रीज़न ये है कि हम उस इंफॉर्मेशन को पहली बार में जितनी गहराई से समझना चाहिए शायद उतनी गहराई से नहीं समझ पाए हैं. ओके. है ना.
क्योंकि पहली बार में जब भी हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो हमारी नॉलेज बड़ी सरफेस लेवल होती है। उसकी गहराई में जाने के लिए हमें उसे बार बार रीरीड करना पड़ता है। ओके। है ना? जितने रिपीटेशंस हम करेंगे, जितना फ्रीक्वेंट हमारा एक्सपोजर होगा, उतनी ही हमारी डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू स्टार्ट डूइंग स्पेस्ड रिविजन्स, तो ये शायद प्रैक्टिकल एक्सपोजर वाली नीड है ना, अभी ख़त्म हो जाएगी थोड़े समय के लिए, जब तक कि ये कोर्स कंप्लीट होता है। ओके। बिकॉज यू हैव टू लर्न दीज इंफॉर्मेशंस बाय हार्ट ना। क्योंकि ऑडिट के समय जाएंगे तो वहाँ तो रूल बुक खोल के नहीं बैठेंगे। करेक्ट करेक्ट। है ना? you must know the things by heart. They should be on your tips, all the rules and regulations. That is the whole point of auditing something, na? There is one more thing which we want to add, that in the domain in which I want to make my career, so they pay you for your thought process. So apart from completing the certification, important thing is I have to develop that thought process. Like if I go for the certification, after doing the rectification and all, I can feel that I will easily pass the certification and will get the certification. So here, that is not the main thing. The main thing is I have to develop that thought process, that how I am doing risk assessment at that time, what I am thinking. So I feel that this is the main thing which I always feel, that I am gaining theoretical knowledge, but what should I do to develop that thought process? How do you think thoughts come in our mind? When we read about something, so thoughts come automatically regarding that, or whatever we are thinking. कॉन्शियस माइंड में जो हमारे थॉट्स आते हैं ना, मैं सबकॉन्शियस की गारंटी नहीं लेता, कॉन्शियस माइंड की बात कर रहा हूँ। वो जो पहले से एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है ना हमारे पास, उसके बेसिस पे आते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेसिस पे। if you know that there are 4 rules, है ना, to properly execute an audit, तो that is your knowledge base. Okay. ठीक है? अब उन 4 रूल्स में क्या क्या वायलेशंस हो रहे हैं या क्या लूप होल्स निकल सकते हैं, that is your thought process. Correct. है ना? That is your depth of knowledge. है ना? जरूरी नहीं है वो आपको बुक से ही सीखने को मिले। करेक्ट। लेकिन उसके लिए पहले वो 4 रूल तो पता होने चाहिए। करेक्ट। तो इसीलिए रट्टाफिकेशन मुझे नहीं लगता कि इज द राइट टर्म टू डिनोट दिस थिंग, बिकॉज क्या है आदित्य, जब भी हम रट्टाफिकेशन जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वी आर बेसिकली डिमीनिंग आवर ओन एफर्ट्स। ओके। रट्टाफिकेशन क्या है भाई? रट्टाफिकेशन बेसिकली इतने नेगेटिव कॉनोटेशन में हमें नहीं देखना चाहिए। वी आर सिंपली लर्निंग एन इंफॉर्मेशन in order to reproduce it when we want to, as we want to. Noted. है ना? That is the whole point of learning an information by heart, isn't it? Correct. Otherwise आज तो Google है, हमें क्या जरूरत है बार बार चीजों को याद करने की? We can simply Google them. Okay. लेकिन हम चीज़ें याद इसीलिए रखते हैं कि जब चाहे तब हम उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर सकें और उस इंफॉर्मेशन के आधार पे हम अपने फैसले ले सकें, है ना? हम अपने डिसीजंस को भी मॉडिफाई कर सकें, अडेप्ट कर सकें बेसिकली। ये है ना सारा गेम, है ना? सो दैट इज व्हाई यू मस्ट लर्न द इंफॉर्मेशन, आई वुड से वेरी रिलीजियसली। ठीक है? इसमें रेक्टिफिकेशन जैसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज वंस यू नो द रूल्स
you will automatically get to know how they can be played with. Okay. How someone who is trying to circumnavigate his way from audit or circumnavigate his way around the standard protocol, जिसे हम कहते हैं ना काम चोरी करना, तो वो चीज की जानकारी तभी तो आएगी when you already know what the rules are. Correct. है ना? Let's say for example, if you are auditing a godown, है ना? Okay. ठीक है, और गोडाउन में है ना अनाज के बोरे लगे हुए हैं, ठीक है. यू नो कि स्टैंडर्ड रूल्स ये हैं कि एक जो चट्टा लग रहा है बोरों का, ठीक है, उसमें 100 बोरे नीचे होने चाहिए, है ना? Okay. 10x10 के स्क्वायर में, ठीक है, और उसके ऊपर 8 स्टोरीज होने चाहिए टोटल, Okay. ठीक है, यानी एक चट्टे में 800 बोरे होने चाहिए. नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड रूल, ठीक है, एंड नाउ यू नो दिस, ठीक है. Okay. तो अभी किसी को चोरी करनी होगी तो वो क्या करेगा? वो ये करेगा ना कि भाई जो 10 बोरे हैं उसकी जगह 9 बोरे लगाएगा, या 10x9 का चट्टा बना देगा कि भाई कौन सा वो साइड में जाके देख रहा हो तो सामने सामने से बोरे गिन लेगा कि यहाँ पे 10 नीचे लगे हुए हैं, 8 स्टोरी ऊपर है. वो सोचेगा कि ठीक है ना? बट सिंस यू ऑलरेडी नो द रूल, यू नो हाउ इट कैन बी प्लेड विद, राइट? या फिर वो साइड साइड में सब जमा के दिखा देगा और बीच में खाली रख देगा, Correct. है ना? नाउ दिस इज थिंकिंग अबाउट द रूल्स. ये थॉट प्रोसेस है ना. और ये चीज कब आती है? when you experience things first hand. So do not be so harsh on yourself कि you have to arrive at such complex patterns of thoughts right now at this moment when you are learning. Okay. है ना? क्योंकि ये चीज अनुभव के साथ आएगी. You have to give space to time, है ना, टू डू समथिंग. तो समय के साथ अपने आप चीजें आ जाएंगी. Okay. और इसके अलावा मतलब इसके अलावा एक ही चीज इसी से रिलेटेड था कि लाइक नाउ व्हेन आई विल लर्न ऑल द डेफिनेशंस एंड ऑल, सो what is the right way to learn all those definitions? For example, if I have to learn the definition of risk, so the teacher taught me, I wrote down the definition, and then I'm learning that word by word. Like for example, risk means risk is an event that has a potential to cause a negative impact on the organization. So this is the exact definition. So this is the correct way in which I have to learn all the concepts, or there is some other way to learn the things? नहीं, मुझे तो ये डेफिनेशन बहुत इजी लग रही है. देखो, until and unless you are expert enough to bring in new explanations, ठीक है, और you are able to devise your own explanations for certain concepts, it is fine, है ना? It is fine. They should only be judged upon whether they are valid or not. वो सारे उन क्राइटेरियाज को मीट कर रही है या नहीं कर रही है. फॉर एग्जाम्पल, हाउ विल यू डिफाइन रिस्क इन योर ओन लैंग्वेज? Risk is something that I gave the definition, like वो डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है, बट ऐसी बहुत सारी डेफिनेशंस है ना उसके अंदर, तो मतलब रिस्क की तो इससे बढ़िया कोई डेफिनेशन हो नहीं सकती. बट अभी इसके अंदर जैसे बहुत सारे 1000 कॉन्सेप्ट है, तो 1000 में से मान लो कि 200 कॉन्सेप्ट मेरे को ऐसे लगे कि मैं इसको अपनी लैंग्वेज में बोलूंगा तो ज्यादा ठीक है. बट एट द सेम टाइम वो चीज भी दिमाग में रखना जरूरी है कि आई हैव टू यूज दीज टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजीज टू साउंड टेक्निकल. मतलब बहुत बार होता है ना कि अगर मैं अपनी लैंग्वेज में सामने वाले को चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ और उसमें अगर उन टर्मिनोलॉजीज का मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, सो द अदर पर्सन विल थिंक दैट ही don't have practical knowledge, and at his place he is absolutely correct, because using
certain terminologies is very important. मतलब जैसे अभी रिस्क की जो मैंने डेफिनेशन बताई, वो ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से और वो सब बिल्कुल ठीक है. अब ऐसा नहीं कि रिस्क की एक ही डेफिनेशन है. रिस्क की तो 500 डेफिनेशन हो सकती है और 500 की 500 सही भी होगी. बट फॉर अ पर्टिकुलर डोमेन, पर्टिकुलर फ्रेमवर्क, तो वहां पर वो 2-4 डेफिनेशन ही है. अगर उसमें आपने 2-4 वर्ड भी इधर उधर किए, सो दैट मीन्स कि आपने प्रॉपर टर्मिनोलॉजीज का यूज नहीं किया, which makes you incompetent in front of others because you are not using. You answered your own question. बस तो जब यही अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट है एंड दिस इज द पाथ दैट यू हैव टू वॉक, तो दूसरे के बारे में सोचना ही क्यों? डिफाइन द थिंग्स विच यू कैन डिफाइन इन योर ओन टर्म्स, है ना? जो खुद से डिफाइन की जा सके कर लो. जो जिसके लिए आपके पास बेटर डेफिनेशन नहीं है, बेटर एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिंपली फॉलो इट. व्हाट्स रॉन्ग विद इट, है ना? करेक्ट. बस. Means like from this discussion, I concluded the following things that while I am doing this certification, so the best way is to firstly mug up all the concepts, and when you will understand, like mug up all the concepts, then you have the chance to to implement those things practically, because all those things are there in your head. And when you will get the exposure, so automatically you will develop that type of thinking process. True. So the main point is you have to learn all the concepts first. Yes. You have to go through the information first. और ये तो यार एक बड़ा सिंपल सा, मतलब सिंपल सा तो नहीं कहूँगा, बट मतलब ये तो फिर भी कंपैरेटिवली एक सिंपलर कोर्स है ना ऑडिट का. सपोज इफ यू आर एन इंजीनियर एंड यू आर डूइंग योर बीटेक, है ना? और उसमें अचानक से, मतलब ऐसा तो नहीं है कि इन द नाइट यू विल स्लीप एंड इन द मॉर्निंग यू विल जस्ट गेट अप एंड ट्राई टू बिल्ड एन वो इंडक्शन मोटर बनाने लग जाओगे, है ना? वो है ना? ठीक है भाई, यू विल हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट ना. Without going through them, how can you expect yourself to build a motor? Like as I have also prepared for the competitive exam, so that learning is very different from this learning, because in that we just try to understand the things. There is no concept like terminologies and all. We just have to understand and deliver at the time of exam. But here you have to learn the same things with proper terminologies, and then you can succeed. So that's why I was getting confused. नहीं हाँ, टर्मिनोलॉजी तो है ना आदित्य. क्या है कि टर्मिनोलॉजी सर्व्स एज अ की टू अ सब्जेक्ट, है ना? इट बेसिकली सर्व्स एज अ लैंग्वेज, है ना, थ्रू विच यू कैन कन्वर्स विद योर पीयर्स एंड कलीग्स इन अ लैंग्वेज दैट दे अंडरस्टैंड, है ना? अभी हाँ बिल्कुल. अभी लेट्स से कि अगर ऑडिट के दूसरे फेलोज हैं एंड इफ यू आर यूजिंग अ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी विच दे आर नॉट यूजिंग, ठीक है, सो हाउ विल यू मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू? एंड ऑल्सो अगर एफिशिएंटली उनसे कम्युनिकेट करना है तो यू विल हैव टू लर्न द टर्मिनोलॉजी दैट दे आर यूजिंग. करेक्ट, है ना? That is why we learn these concepts by heart. Correct. और बाकी लर्निंग कोई सी भी हो, लर्निंग इज सेम एवरीवेयर. You have to go through the information first, then comes the implementation part, then it becomes, when you implement it, then it becomes experience. ठीक है? And when depending upon whether that experience is good or bad, you get a feedback. ठीक है? Correct. और उस फीडबैक के बेसिस पे आप अपनी इंफॉर्मेशन को या तो ऑल्टर करते हो, ठीक है, या सप्लीमेंट करते हो कि ओह ये एक और नई चीज सीखने को मिली मुझे जो पहले मेरे पास नहीं थी, है ना? एंड देन यू इम्प्लीमेंट इट अगेन टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट. Correct.
सेम प्रोसेस है हर जगह, कोई सी भी फील्ड उठा के देख लो, इट इज द सेम मैकेनिज्म। करेक्ट। अभी जो हम पाथ फॉलो कर रहे हैं, डू यू थिंक अभी जो हम प्लान फॉलो कर रहे हैं वो पूरा अप्रोप्रिएट है टू अचीव आवर गोल इन टाइम? Our path is good, but I just feel that we can add one more thing in this. Which is? Like as I mentioned that I use a mobile a lot in my free time. So I was feeling that at the place of doing that mindless scrolling, if you have some time and if you will share some informative videos, regardless of any particular domain. So I feel that that will be very impactful for me, because like I know that I will use mobile phone. So at the place of completely shutting it down right now is not the correct option, because already we are doing 2-3 things. So I do add one more. But what I am watching, we can change that particular aspect. जरूरत नहीं है. Ask me why. Ask me why. Why? आदित्य, क्या है, फोन एडिक्शन जो है ना, इट इज एन एस्केप मैकेनिज्म. Okay. है ना? और ये चीज खत्म कब होती है? व्हेन वी स्टार्ट यूटिलाइजिंग आवर टाइम मीनिंगफुली. फॉर एग्जाम्पल, अर्लियर द टाइम दैट यू आर डिवोटिंग टू योर स्टडी नाउ, earlier all of this time was being used in watching reels. Okay. है ना? But you decided a meaningful goal. Correct. And you took back that time from your, I would say, lesser self, जो फोन में लगा रहता है. हर एक इंसान में 2 वर्जन्स होते हैं ना, एक हायर सेल्फ होता है और एक लोअर सेल्फ होता है, लेसर सेल्फ, है ना? So you took that time back from your lesser self, na? By giving yourself a meaningful goal. Similarly, जब ये गोल जो है ये थोड़ा सा मैग्नीफाई होता चला जाएगा ना, एम्पलीफाई होगा, ठीक है, तो उसके बाद ये जो बचा हुआ समय भी फोन में जा रहा है या रील्स में जा रहा है ना, इसके लिए फुर्सत ही नहीं रहेगी. करेक्ट. अपने आप ही ये चीज अपने आप जिंदगी से गायब हो जाएगी. लेकिन अगर इसको टारगेट बना लिया ना खत्म करने का, कि नहीं बस फोन को हाथ नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, देन इट विल कैप्चर ऑल योर अटेंशन. पूरा दिमाग बस यही चलेगा कि फोन को हाथ नहीं लगाना है. वो ये नहीं सोचेगा कि मुझे क्या करना है जाके. और जिस चीज पे हमारा अटेंशन फोकस्ड होता है ना, वही चीज हम मैनिफेस्ट करते हैं ना चाहते हुए भी. यानी कि जब हम ये सोचेंगे कि फोन यूज नहीं करना है ना, तभी हम फोन यूज कर रहे होंगे, देखना. अब नहीं तो 1 घंटे बाद गिव अप कर देंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में तो कंसिस्टेंटली थॉट्स चल रहे हैं ना उसको यूज करने के या ना यूज करने के, है ना? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक आदमी जो है वो एक नाला पार कर रहा है एक खंबे पे चल के, है ना, और उसके बाद वो पूरे टाइम बस ये सोच रहा है गिरना नहीं है, गिरना नहीं है, गिरना नहीं है, गिरना नहीं है, और फिर वो गिर जाता है. वो गिरेगा ही ना. इससे बेटर क्या है वो सामने देख सकता है कि हाँ अरे उधर पहुंचना है, उधर पहुंचना है, उधर पहुंचना है, चुपचाप चलता हुआ चला जाएगा. लेकिन अगर ये करेगा गिरना नहीं है, गिरना नहीं है, तो गिरेगा ना. तो these are few approaches that we can adapt in our life, है ना? And I think it is working wonderfully for you. At least ये 4-5 घंटे तो दिन के वापस मिले. करेक्ट. बस हम इसी स्पेस को ना धीरे धीरे फिल करेंगे, and then we will take back all the time that our phone takes away from us. करेक्ट. Perfect. इसलिए अभी जरूरत नहीं है. Okay. हाँ, मन को अभी करने दो जो कर रहा है. हम तो बस फिलहाल जो अपना शॉर्ट टर्म टारगेट सेट किया है उसको हासिल करने में अपनी सारी एनर्जी लगाते हैं. एक चेंज है जो मैं करना चाहता हूँ इसमें रूटीन में ना, Okay. वो ये है आदित्य कि फिलहाल जो स्पीड चल रही है ना,
ठीक है, अच्छी स्पीड है और इस हिसाब से आई थिंक हम महीने भर में ये कोर्स अचीव भी कर लेंगे, मतलब हमारा गोल अचीव कर लेंगे, है ना. बट यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर अ रेनी डे. ओके. मतलब ये कि यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर अ डे जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होंगी. हो सकता है कि सर दर्द होने लग जाए, है ना. हो सकता है तेज़ बारिश आए और हम भीग जाएं और कुछ हल्का जुकाम वगैरह हो जाए और फिर वो दिन उसमें चला जाए, है ना. या फिर हो सकता है किसी दिन इलेक्ट्रिसिटी ना हो, किसी दिन हो सकता है कि हमारी बुक ही मिसप्लेस हो जाए या कुछ और रीज़न हो, है ना. ठीक है, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दैट. हमारे पास कंटिजेंसी प्लान है ही नहीं इस चीज़ के लिए. इसलिए व्हाट यू शुड डू इज, है ना, एवरी डे जो हर एक दिन का गोल सेट किया है ना, ठीक है, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड करना. ओके. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर डूइंग 50 पुशअप्स एंड यू वांट टू कंप्लीट 1500 पुशअप्स ना, ठीक है, लेट्स से 50 की जगह पे यू आर डूइंग 60 पुशअप्स एवरी डे. ओके. तो 5 दिन में यू सेव्ड 1 डे, करेक्ट, है ना. तो वो एक दिन हमारा कंटिजेंसी के लिए बच गया कि क्या पता कोई इमरजेंसी आ जाए, हमें कहीं जाना पड़ जाए, करेक्ट, और हमारा रूटीन डिस्टर्ब हो जाए. ठीक है ना. सिमिलरली यू कैन ऑल्सो अडेप्ट दिस सेम मेथोडोलॉजी इन टर्म्स ऑफ योर कोर्स कंटेंट, पढ़ाई में. ठीक है, जस्ट डू अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा एवरी डे. ओके. ताकि कोई दिन ऐसा हो जब ना पढ़ पाए तो हमारे पास बैकअप रहे कि हाँ, हमने उस टारगेट को सही समय पे अचीव कर लिया है डिस्पाइट फेसिंग हर्डल्स. करेक्ट, है ना. जैसे हम इसको अगर मैं दूसरे टर्म्स में एक्सप्लेन करूँ तो अगर हमने 30 दिन का टारगेट सेट किया है ना, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे 25 या 26 दिन में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं. क्योंकि हमें पता है कि जिंदगी कभी भी एक जैसी रहती ही नहीं है, उसमें स्टेबिलिटी नाम की चीज ही नहीं है. कभी भी चेंजेस आते हैं और बहुत अब्रप्ट चेंजेस आते हैं. करेक्ट. तो जब वो आएंगे तो एटलीस्ट हम प्रिपेयर्ड रहेंगे. हमने ऑलरेडी इतना एक्स्ट्रा एफर्ट कर लिया है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा. हम वापस एक दिन या 2 दिन जो भी लगेंगे ट्रैक पे आने में, हम समय का सही उपयोग कर पाएंगे, है ना. वी विल बी एबल टू गेट बैक ऑन ट्रैक. ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है. बढ़िया है. कल से थोड़ा और मैं आई विल पुश माय सेल्फ लिटिल बिट मोर. परफेक्ट. एक्स्ट्रा एफर्ट को डालने में जो भी समय इस्तेमाल होगा, 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट, यू विल बी टेकिंग दिस टाइम अवे फ्रॉम योर रील्स. करेक्ट है ना. तो ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इसका. करेक्ट, करेक्ट, है ना. तो इसको बोलते हैं एक तीर से 2 निशाने. करेक्ट. सही है ना. परफेक्ट. And there is one more thing that I was thinking that I will start reading. So is it the right time or should we wait? Reading what? Like I will start some novels. हाँ, you can read them. उसमें क्या है? But I have to develop the habit of reading. ना, मतलब it is not that I am very passionate about reading. अच्छा, मन नहीं कर रहा है बट हैबिट डेवलप करनी है रीडिंग की. करेक्ट. देन इट इज नॉट द राइट टाइम. यू आर ऑलरेडी डूइंग समथिंग विच इज चैलेंजिंग योर माइंड. ठीक है. एंड योर माइंड इज मेकिंग यू फील मिजरेबल फॉर इट एवरी डे. दिमाग ही तो ये थॉट्स लेके आता है ना कि मजा नहीं आ रहा है, आज इतना 5 घंटे दे दिए फिर भी मजा नहीं आया, है ना. कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है इन सब चीजों का. तो ये रेजिस्टेंस जो है ये दिमाग से ही तो आ रहा है. इट इज ट्राइंग टू टेक यू अवे फ्रॉम दिस पाथ विच यू हैव चोजन. तो वो ही तो ऐसे खुराफाती आइडिया देगा ना कि चल यार नोवेल पढ़ ले, तू वो हैबिट डेवलप कर, वो ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है. करेक्ट. फिर होगा क्या कि इफ यू स्टार्ट रीडिंग नॉवेल्स तो दिमाग कहेगा कि यार कौन पढ़ेगा ये ISO सर्टिफिकेशन, है ना, तो बोरिंग है. ऐसा कर रहा हूँ 1 घंटा नॉवेल पढ़ता हूँ, फिर पढ़ने का मन हो जाएगा, फिर पढ़ लूंगा मैं. तो वो बैक सीट ले लेगा फिर.
हाँ है ना। और इवेंचुअली ना तो नोवेल पूरा खत्म होगा और ना कोर्स, खत्म हुआ। करेक्ट है ना। तो पहले कोर्स फिनिश करो, ठीक है ना। तो वो कहते हैं ना, दिमाग की अगर मान ली ना तो ये बर्बाद करके छोड़ेगा। हाँ सही बात है। हाँ, माननी नहीं है इसकी। करेक्ट। इसके अलावा और कोई समस्या? नहीं, इसके अलावा तो अभी कुछ समस्या नहीं। ठीक है, एवरीथिंग गुड। परफेक्ट। ठीक है, तो करें कंक्लूड सेशन आज का? हाँ बिल्कुल। वेल, आई होप इट इज वर्किंग वेल फॉर यू। इट इज वर्किंग वंडरफुली। Like whatever doubts which came into my mind, I am discussing all those doubts with you and getting that second opinion. So that second opinion is very helpful to decide the course of action for future. So it is going well. आदित्य, जिंदगी में है ना, कोई भी चीज हो, वो सब चीजें ना मीनिंगफुल पता है कब बनने लगती है हमारे लिए? जब हम ना यहां से और ऐसे आने लगते हैं, ठीक है, यानी कि फ्रॉम ब्रॉड टू नैरो। करेक्ट। जब हम गहराई में घुसने लगते हैं ना, जितने फोकस्ड होते चले जाते हैं, चीजें उतनी मीनिंगफुल होती चली जाती है ना। करेक्ट। और अगर हम बाहर की तरफ जाने लगेंगे ना, अगर हम चाहेंगे कि हम ये भी बन जाएं, वो भी बन जाएं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हो जाएं, है ना, तो लाइफ भी क्योटिक होती है, रिवॉर्डिंग नहीं रहती है। रिवॉर्डिंग नहीं रहती है वो कभी भी। करेक्ट है ना। तो ये बात है यार, है ना। सो वी हैव टू मेक लाइफ रिवॉर्डिंग। इसलिए पहले ये गोल जो हमने डिसाइड किया है, इट शुड बी फिनिश्ड। करेक्ट, है ना। ठीक है, चलें फिर। ठीक है भैया, ओके। ठीक है, तो आज का टारगेट हो गया पूरा? हाँ हो गया ना आज का। ओह वेरी नाइस। क्या, तो कल का टारगेट अपडेट करना लिस्ट में, और थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा ऐड करना, ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा। हाँ, उसमें मैं ऐड कर देता हूँ। हाँ, है ना। ज्यादा इसलिए नहीं कि फिर वो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाएगा। ओके। हाँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना ताकि अच्छा भी लगेगा और जल्दी भी कवर होगा वो। करेक्ट। ठीक है। ओके आदित्य, ठीक है, टेक केयर। ओके भैया, बाय, टेक केयर। ओके, बाय।